Hi, greetings to all in the name of Jesus. My name is Apostle Arvind Ephraim, and I'm doing a short teachings on Facebook and on YouTube. So I would speak two languages because initially I planned to do it in Hindi. पहले मैंने हिंदी में मैं करूँगा करके मैंने सोचा, but I got a lot of comments and emails so that I could speak in both languages. तो मुझे बहुत सारे emails मिले कि आप इंग्लिश भी बोलिएगा, because there are many of my friends and the children of God, those who view my teachings, they don't know Hindi, so they just want me to speak in English also. English में भी बात करने के लिए उन्होंने कहा. So if I speak in two languages, it will really go big. So the length of the video will be long. अगर मैं हिंदी और इंग्लिश में बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. So I'm going to do short teachings which will be less than 5-6 minutes. 5-6 मिनट का teaching होगा. I will take one book of the Bible and I will take few verses and I'm going to share what Lord is speaking to me. Bible का मैं एक पुस्तक लूँगा और उसमें से वो एक चैप्टर को लेकर मैं समझाने का प्रयास करूँगा. So I want to pray first now. Father God, bless us and speak to us in a new way. हमसे बातें कीजिए पिता यीशु मसीह के नाम से एक नए सिरे से. Thank you Father, in Jesus name I pray, amen. So I'm going to take book of Genesis. So I'm going to explain like few verses every day and keep on doing that. तो मैं उत्पत्ति ग्रंथ लूँगा और शुरुआत से मैं जितना वचन थोड़ा थोड़ा कर मैं उसको समझाऊँगा और मैं आगे बढ़ना चाहूँगा जब तक प्रभु मुझे अगुवाई देता है. तो हम उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का पहला वचन पढ़ते हैं. So we will read Genesis first chapter, the first verse. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning God created the heaven and the earth. उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला वचन. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. Beginning is when the countdown of the time started. Now this beginning is not for God. ये जो शुरुआत है ये परमेश्वर के लिए नहीं है. Because God existed before the beginning and God exists even after the end. So the beginning and the end is for us. परमेश्वर शुरुआत से पहले भी था और अंत के बाद भी है. तो ये जो शुरुआत है ये शुरुआत हमारे लिए है. तो जब आदि या शुरुआत जब कहा गया है तो ये शुरुआत हमारे बारे में बात कर रहे हैं. This is talking about us. This beginning is about us. So where God dwells, there is no time. So the time has been created for us. जहाँ परमेश्वर निवास करते हैं वहाँ समय नहीं है. समय हमारे लिए बनाया गया है. For us there is like 2019, 20, 21, 22, 23, 24 and so on. Different dates, time. There is a calendar for us. There is a set calendar for us. हमारे लिए 2020, 21, 22, 23, 24 एक कैलेंडर हमारे लिए बनाया गया है. लेकिन जहाँ परमेश्वर रहते हैं वहाँ 2022 नहीं है, 2021 नहीं है, वहाँ कोई समय नहीं है. But where God lives, there is no time. God is not bound to time. Where God lives, there is no 2010 or 2011, 2020. कोई साल, कोई दिन, कोई कैलेंडर नहीं है. God dwells in present. तो जहाँ परमेश्वर है वहाँ समय रुक जाता है. Where God lives, the time stops. So you need to understand that where God is, there is no time. That's why it is called eternity. जहाँ परमेश्वर है वहाँ समय नहीं है, इसलिए उसे अनंत कहा गया है. मतलब अनंत. और ये जो समय है जब उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का पहला वचन और उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का दूसरा वचन के बीच में कई हजारों साल का फर्क है. From Genesis first chapter first verse and from Genesis first chapter second verse, there is a lot of gap, and that is called the gap theory, GAP theory, because there is a difference of many years. So before God recreated the earth, God created the earth for the angels. The angels used to dwell on the earth. That is called the pre-Adamite times. परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाने से पहले ये पृथ्वी बना था देवदूतों के लिए. ये आदम के पहले का समय है. आदम का पहले का समय. When the angels, the leader was the Lucifer who rebelled against God. God kicked him out of the heaven, and he took his angels and he fell on this earth, and God threw this earth into the darkness and into the water. और जब देवदूत, जब लूसीफर
परमेश्वर के खिलाफ बगावत किया तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से फेंक दिया और वो ज़मीन पर गिरा, और वो परमेश्वर ने उस पृथ्वी को भी अंधेरे में फेंक दिया, अंधकार में फेंक दिया। द गॉड इन हिब्रू इज एलियोहिम, एलियोहिम। परमेश्वर को एलियोहिम, एलियोहिम कहा गया है। जब इम, द वर्ड आई एम, इम एट द लास्ट ऑफ द हिब्रू लेटर रिप्रेजेंट्स द प्लूरल, इट इज मोर देन वन। इम जो शब्द है, इम जहाँ पर भी, लाइक चाइम, दैट मीन्स ब्रेथ्स, गॉड ब्रेथ चाइम, परमेश्वर ने श्वास को फूका, लाइक सेराफिम्स, एंजल्स, इम इज देयर एट द एंड, सेराफिम्स, एलियोहिम, when there is an im, जब im पीछे लगा है, that means plural, that means God is Father, Son and Holy Spirit, tripartite। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रित्व में है परमेश्वर। So this is and God, we need to understand something about the creation, is that the Hebrew letter for created, the Hebrew letter for created is bara। हिब्रू शब्द जो सृष्टि का जो शब्द है, सृष्टि शब्द हिब्रू में बारा है, एंड द वर्ड बारा मीन्स आउट ऑफ नथिंग, आउट ऑफ नथिंग। सो गॉड व्हेन क्रिएटेड एवरीथिंग व्हाट यू सी व्हिच इज एग्जिस्टिंग, ही क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, ही यूज्ड नथिंग, जस्ट ही स्पोक, ही इज द स्पोकन वर्ड। अब जो कुछ भी देख रहे हैं सृष्टि में जो परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर ने किसी चीज का भी इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर शून्य से बनाया है पूरे संसार को, शब्द से। सो गॉड कैन क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम नथिंग। परमेश्वर कोई भी चीज शून्य से बना सकता है। गॉड कैन क्रिएट, गॉड कैन रिक्रिएट, गॉड कैन डू एनीथिंग, एंड गॉड डजंट नीड एनीथिंग टू क्रिएट, हिज वर्ड इज एवरीथिंग। परमेश्वर कुछ भी बनाने के लिए, पुनर्बनाने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए परमेश्वर को कोई भी चीज का जरूरत नहीं, उनका वचन ही काफी है। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू anything in a financial crisis, or if you're going through a trouble in your life, if you're going through something that you think that I need something, or God needs something to fix this, then my friend, I wanted to tell you, God doesn't need anything. God can fix things without using anything. अगर आप सोच रहे हैं आपके जीवन में, आर्थिक परिस्थिति में, आपके सेवकाई में अगर कुछ चाहिए जिसको इस्तेमाल कर परमेश्वर मेरे जीवन को संवारेगा, बनाएगा, तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को सृष्टि करने के लिए कोई भी चीज का जरूरत नहीं। His word is enough. If he will speak, and when he speaks, things come into existence. जब वो बात करते हैं तो चीजें वास्तविकता में आ जाती हैं। So I want to pray. Father God, I pray that if anyone over here who is listening to this message is going through a crisis and they are expecting that I need something to restore my crisis, यहाँ जितने भी मेरे इस वचन को सुने, अगर वो सोच रहे हैं कि मैं एक दुखद समय से जा रहा हूँ और इसे ठीक करने के लिए मुझे कुछ चाहिए, then I would like to tell that God doesn't need anything. God can use things from, God can create things from nothing. परमेश्वर, आप इतने शक्तिशाली है कि आप शून्य से सब कुछ बना सकते हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद देते पिता। ब्लेस एवरीवन लॉर्ड, सबको आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम से, जीसस नेम आई प्रे, आमेन। गॉड ब्लेस यू।